Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Industry Relation and the Labor Law. And today we are going to discuss very important topic. That name is the Workmen Compensation Act 1923 Part 2. And this Part 2 we are going to discuss about the employer liability for the compensation. Employer की liability क्या होती है, employees का दायित्व क्या होता है compensation से related. So we are going to discuss this topic. This is very important topic in your examination point of view. So prepare this topic with concern with your examination point of view too. So start with the name that is uh, Workmen Compensation Act is basically you can say that अब वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट को हम अब एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के नाम से प्रोनाउंस करते हैं. नाउ दिस एक्ट इज यू कैन से दैट एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 was known as workmen compensation act, or you can say that the new name of this act is एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923. 2009 में वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट को चेंज कर दिया गया. नाउ दिस एक्ट इज नोन एज Employees Compensation Act 1923. So don't be confused with the act name. वर्कमैन की जगह यहाँ एम्प्लॉयज़ वर्ड को यूज़ किया गया है. तो अब इस एक्ट को हम एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 से जानते हैं. अब इसमें जो वर्कमैन वर्ड्स था उसकी जगह एम्प्लॉयज़ को यूज़ किया गया है. सो इन 2009 में ये नेम जो था वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 इट इज ट्रांसफर टू द नेम विद द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923. तो ये हो गया है. द this diagram is shows what exactly or brief idea about the workmen or the employees compensation act 1923. तो ये एक्ट जो बेसिकली एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो है ये बेसिकली क्या बताता है एग्जैक्टली दिस डायग्राम इज shows what exactly this act is, and this is a very short way of describing the act. How it is described, that is here you can say the employer and the workman. Employer and workman के बीच का ये act है. You can say the worker and the employer. Employer is a liability. Employer की दायित्व होता है, liabilities होती है employer की to compensate करना किसको, वर्कर को. वर्कर मीन्स एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट अगेंस्ट. तो लाइबिलिटीज बनती है एम्प्लॉयर की टू सेव और टू प्रोटेक्ट द वर्कर against the occupational disease, death and accident. So we can say workmen compensation or the employees compensation act 1923 is basically a act between employer and the workman, and the employer is has a liability of employers has a liability to compensate the worker and against the or you can say compensate or to protect the worker against the occupational disease, death and accident. And here the worker has a right to claim the compensation only in the monetary term or any act. Accident must be part of the work. तो वर्कर का राइट होता है कि कंपनसेशन मिले उसे मॉनेटरी फॉर्म में whenever the accident happen in when he doing the work. तो whenever he doing the work, any kind of work in the company or a factory, तो उसको कोई भी अगर कोई भी इंजरी या कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी डेथ होती है, ऑक्यूपेशनल डिजीज होती है, उसका राइट है कि वो क्लेम कर सके कंपनसेशन से रिलेटेड. और एम्प्लॉयज की ड्यूटी और लाइबिलिटीज बनती है कि वर्कर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज से उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, एज वेल एज दे प्रोवाइडेड अगेंस्ट और दे एम्प्लॉयर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट their employees or the worker against the death, against the accident, protect against the accident. Accident can be two types: minor injury accident or the major injury. माइनर मीन्स माइन्यूट, मीन्स स्मॉल. अगर छोटी सी इंजरी होती है तो एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी बनती है कि दे हैव टू प्रोवाइड द फर्स्ट ट्रीटमेंट टू देयर एम्प्लॉयज़. अपने एम्प्लॉयज़ को और वर्कर को अपने वर्कर को फर्स्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया. दिस इज अ लाइबिलिटी और द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू प्रोटेक्ट द वर्कर अगेंस्ट द माइनर इंजरी.
And when the accident is of major kind, major means large, or you can say a very big amount of disablement happen to the employees को अगर बहुत बड़े लेवल पे इंजरीज होती है तो तब उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे. दिस इज द ड्यूटी एंड ड्यूटी ऑफ द और लाइबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू प्रोटेक्ट देयर एम्प्लॉइज अगेंस्ट द डिसेबलमेंट. और डिसेबलमेंट अगर मेजर हुआ तो मेजर कैन डिसेबलमेंट 4 टाइप्स के हो सकते हैं. फुल डिसेबलमेंट. Disablement means ablement means implies he can't able to perform their work, and he is basically the injury is of a, is disable the employees. The employees जब disable हो जाता है अपने काम को perform नहीं कर पाता इंजरीज की वजह से. तो इंजरीज बेसिकली ऑफ 4 टाइप. फुल डिसेबलमेंट मीन्स फुली डिसेबल हो जाता है. टेम्पररी डिसेबल हो जाता है एम्प्लॉइज इंजरी की वजह से. पार्शियल मीन्स हाफली कुछ काम कर पाता है कुछ नहीं कर पाता. और परमानेंटली मीन्स परमानेंटली और इन यू कैन से ही कांट एबल टू डू he he totally disabled to perform any kind of a task in the workplace. So this is the 4 type of disablement happen when the accident occur. And this accident, whenever this accident kind of incident happen in a company, the employer's duties and liability to protect their employees or worker to protect against the accident. So this is all about the compensation act. एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट बेसिकली एम्प्लॉयर अपने वर्कर को प्रोटेक्शन करेगा ऑक्यूपेशन डिजीज से, डेथ से, एक्सीडेंट से. एक्सीडेंट माइनर हो सकता है एंड मेजर हो सकता है. अगर मेजर हुआ तो मेजर में 4 टाइप की डिसेबलमेंट क्रिएट होंगी. उसकी जितनी भी डिसेबलमेंट होंगी उस डिसेबलमेंट से रिलेटेड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा. कंपनसेशन बेसिकली उन्हें कंपनसेट करेगा उनके मेडिकल कॉस्ट प्लस उनकी सैलरी और डिसेबलमेंट पीरियड के हिसाब से उनको पेमेंट प्रोवाइड करेगा. इस कंपनसेशन को प्रोवाइड करेगा कौन? एम्प्लॉयर टू देयर एम्प्लॉइज. तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपनसेशन एक्ट 1923, जिसको हम एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट भी कहते हैं. नाउ स्टार्ट विद द एम्प्लॉइज. हियर आई पुट द सेम थिंग. एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट वाज फॉर्मली नोन एज, फॉर्मली इसको पहले हम इसको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कहते थे. एंड इट प्रोवाइड फॉर द कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय who dies or suffer partial or total disablement due to the accident on the duty. accident और partial disablement जब भी हो जाता है, accident हो जाता है, whenever the employees do perform their task or their duty. इस पीरियड में कभी भी एम्प्लॉयज़ को कोई भी इंजरीज होती है उस समय जो भी एम्प्लॉयर जो होते हैं वो जो मेन ऑनर ऑफ द कंपनी होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करेंगे. My dear student, before starting the topic, I would like to tell you what exactly the is this act. And this act has 36 section and 4 schedule. इस एक्ट में बेसिकली 36 सेक्शन है और ये जो एक्ट है एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट, इट हैज़ 4 शेड्यूल जिसमें कि पूरे पूरे एक्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है. एंड इस एक्ट में बेसिकली कवरेज क्या होता है मीन्स एम्प्लॉइज को किस तरह का कवरेज मिलता है. दे गेट द कवरेज ऑफ डेथ एंड डिसेबलमेंट. तो एम्प्लॉइज को इंजरी में अगर कभी डेथ हो जाती है तो उसको कवरेज मिलेगा मीन्स कंपनसेशन मिलेगा. एज वेल एज एनी काइंड ऑफ डिसेबलमेंट हैपन ड्यूरिंग द एक्सीडेंट. अगर एक्सीडेंट में कोई भी डिसेबलमेंट होता है तो उसको कंपनसेशन प्रोवाइड होगा. तो डिसेबलमेंट क्या होता है? डिसेबलमेंट वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन द प्रीवियस डायग्राम दैट की 4 टाइप का डिसेबलमेंट होता है. दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. Disablement means the reduction in earning capacity. Disablement means the employees is the employees है जो worker है he can't able to do their work or he can't able to um, uh, do perform their task. It means their reduction in earning capacity. वो अपने काम को नहीं कर पाएगा. It means their earning capacity will reduce. तो दिस इज द डिसेबलमेंट. जब भी कोई भी एम्प्लॉइज अपने काम को परफॉर्म नहीं कर पाएगा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस होगी. और जब डिसेबलमेंट होगा तो डिसेबलमेंट कैन बी ऑफ 2 टाइप, पार्शियल और टोटल. तो पार्शियल कैन बी ऑफ 2 टाइप, टेम्पररी और परमानेंट. पार्शियल जो होगा, पार्शियल मीन्स हाफली डिसेबलमेंट, आधा डिसेबल हो जाएगा आधा डिसेबल नहीं होगा तो पार्शियल मीन्स हाफ. तो पार्शियल एक पार्ट पार्शियल में टेम्पररी हो सकता है और एक पार्ट उसका परमानेंट हो सकता है. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन क्या होता है. देन टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट मीन्स क्या हुआ. टेम्पररी
पार्शियल डिसेबल मीन्स हाफ लेवल पे वो अपना काम नहीं कर पाएगा, उसकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। टेम्पररी है मीन्स वो कुछ समय बाद रिकवर कर लेगा। इट मीन्स दैट व्हेन द रिड्यूस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द वर्कमैन, जब भी वर्कमैन मीन्स एम्प्लॉइज की जो अर्निंग कैपेसिटी है इन द एम्प्लॉयमेंट, अपने जॉब के वक्त, व्हेन ही वाज इंगेज एट द टाइम ऑफ द एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, जब भी अर्निंग कैपेसिटी वर्कमैन की कम हो जाती है, जब भी वो एक्सीडेंट की वजह से काम नहीं कर पाता है, ही कांट एबल टू डू देयर वर्क, और इस पीरियड में उसकी जो वो पार्शियल डिसेबलमेंट के कारण वो अपने काम को परफॉर्म नहीं कर पाता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एक्सीडेंट। एंड इस पीरियड में उसको जो भी उसकी अपने काम नहीं कर पाता है, डिसेबलमेंट को हम टेम्परेरी कहते हैं। और जब ये एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ समय बाद रिकवरी हो जाती है, तो आफ्टर दैट उसका डिसेबलमेंट कवर हो जाता है। तो दिस इज अ पार्शियल, तो वो कुछ लेवल पे काम नहीं कर पाता है। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट क्या होता है? It means then which reduce all the time or the earning capacity of the workman in every employment when he is capable of undertaking at the time. It means partially means उसका अर्निंग कैपेसिटी हमेशा के लिए अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, और हमेशा के लिए डिसेबल हो जाती है पार्शियल लेवल पे। मीन्स वो कुछ लेवल पे काम कर पाता है और कुछ लेवल पे कभी भी लाइफ में काम नहीं कर पाएगा, और जिस वजह से उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो परमानेंट पार्शियल मीन्स वो उसका कुछ हाफ हिस्सा, मीन्स जो बॉडी जो इंजरी जो भी हुई है, तो वो कभी भी कवर नहीं हो पाएगी। मीन्स ही कांट एबल टू रिकवर दैट काइंड ऑफ इंजरीज। तो उस इंजरी से जब रिकवर नहीं कर पाएगा तो उसकी परमानेंटली उसका हाफ, सपोज एक एम्प्लॉइज है जिसका वन हैंड जो है वो लॉस्ट हो गया है, तो यहाँ बेसिकली जो वन परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट जो हुआ है, तो परमानेंट हो गया मीन्स वन हैंड से काम नहीं कर पाएगा, ओनली वन हैंड से वो काम कर पाएगा। तो यहाँ उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी वो रिड्यूस होगी, और जो दूसरे हाथ से जो अर्निंग कैपेसिटी वो हमेशा के लिए परमानेंटली डिसेबल हो गया है। ही कांट एबल टू परफॉर्म देयर टास्क फ्रॉम वन हैंड, अपने एक हैंड से नहीं कर पाएगा। दिस इज द परमानेंट काइंड ऑफ पार्शियल डिसेबलमेंट। टोटल डिसेबलमेंट क्या होता है? टोटल डिसेबलमेंट मीन्स वेन एवर अ टेम्पररी और द परमानेंट नेचर। टोटल मीन्स बेसिकली टोटल मीन्स incapacity of a workman for a work when he was capable of performing at the time of the accident. So total disablement means he can't able to do any kind of, totally वो incapacities हो गया, he can't able to do any kind of work he was performing at the time of accident। when he was, जो काम वो पहले कर सकता था वो काम अब वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। दिस इज मीन्स टोटल डिसेबल में वो टोटली डिसेबल हो गया है, मीन्स ही कांट एबल टू परफॉर्म देयर टास्क विच ही वाज परफॉर्मिंग एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट। तो दिस इज द पार्शियल डिसेबलमेंट। और टोटल डिसेबलमेंट बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, टेम्पररी और परमानेंटली। कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर वो टोटली डिसेबल हो जाता है उसको बोलते हैं टोटल डिसेबलमेंट, और कुछ परमानेंटली वो कभी भी कोई लाइफ में अपना काम को नहीं परफॉर्म कर पाएगा एम्प्लॉइज इंजरीज के कारण, तो उसको बोलते हैं परमानेंट डिसेबलमेंट। दिस इज द ऑल अबाउट द डेफिनेशन पार्ट ऑफ disablement. Now moving towards the today topic, and this is very important topic। एम्प्लॉयज की एम्प्लॉयर जो होता है, मालिक जो होता है, उसकी लाइबिलिटीज क्या होती है टू पे द कंपनसेशन अंडर द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जिसको फॉर्मली कहा जाता था, तो एम्प्लॉयज की लाइबिलिटीज क्या होती है कंपनसेशन से रिलेटेड, मीन्स एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटीज बनती है कि अपने एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटीज बनती है, अपने एम्प्लॉयज को क्या कंपनसेशन वो प्रोवाइड कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट। तो एम्प्लॉयर क्या क्या लाइबिलिटीज होती है, वो किस तरह का कंपनसेशन अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर सकता है व्हेन द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द कंपनी, तो किस तरह का कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि वर्कमैन जो कंपनसेशन एक्ट और एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट है, इसकी कुछ हिस्ट्री बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहती हूँ। हिस्ट्री में पहले टाइम पे जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट था 1923, जो जिसको हम वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट भी कहते हैं, और नाउ दिस एक्ट इज नोन एज एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। इस एक्ट से पहले तो एम्प्लॉइज को किस तरह का कंपनसेशन मिलता था, जब भी कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाता है कंपनी में, तो वो कैसे अपने कंपनसेशन कैसे मिलता था। तो ड्यूरिंग द प्रीवियस टाइम, और यू कैन से दैट इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम जब फैक्ट्री में काम करते थे वर्कर, द वर्कर सफरिंग अ पर्सनल इंजरी और एनी काइंड ऑफ इंजरीज, they have they have to recovered or they covered the compensation
तो कैसे कंपनसेशन कर सकते थे? तो उनके पास उसके बाद उस टाइम पर दे हैव टू गो टू द सिविल कोर्ट अंडर द कॉमन लॉ। तो वो बेसिकली उस डिविडेंड पे कोई कंपनसेशन नहीं मिलता था फैक्ट्री के थ्रू। तो एम्प्लॉइज को, जो वर्कर होते थे, उन्हें अपने कंपनसेशन के लिए सिविल कोर्ट में केस करना पड़ता था। दे हैड टू फाइल अ स्यू फॉर द claiming the damages, and they claim for the damages as well as for the compensation। उनको कोई भी इंसिडेंट या एक्स इंजरी होती है तो उनको उस वक्त पे सिविल कोर्ट में एज अ कॉमन लॉ उन्हें अप्लाई करना पड़ता था कंपनसेशन के लिए। एंड दे हैव टू प्रूव दैट पीरियड ऑफ टाइम, उसे उन टाइम पे एम्प्लॉइज को ये प्रूव करना होता था कि जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर फेल टू provide them a safe workplace and safe appliances and the safe environment। तो वो सेफ प्रोवाइड नहीं कर पाए, इस वजह से उन्हें कंपनसेशन चाहिए क्योंकि एम्प्लॉयर की गलती के कारण उन्हें इंजरी हुई है। तो ये चीज़ उन्हें प्रूव करनी पड़ती थी। देन ओनली दे गेट द कंपनसेशन ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम, जब कंपनसेशन एक्ट नहीं आया था। तो और साथ ही साथ उनको प्रूव करना होता था कि जो भी इंसिडेंट और एक्सीडेंट हुआ है, इंजरी हुई है, दिस इज ओनली हैपन ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द एम्प्लॉयर। मालिक की वजह से या एम्प्लॉयर की साइड से नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। दे हैव टू प्रूव देयर दे हैड टू प्रूव देयर द मिस्टेक। उन्हें उन्हें एम्प्लॉयर की मिस्टेक को प्रूव करना होता था। देन ओनली दे गेट द कंपनसेशन। एंड दिस प्रोसेस वेरी लेंथी और डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। यहाँ पर वर्कमैन को काफ़ी नॉलेज भी नहीं होता था। तो इस कारण से जो एम्प्लॉइज़ को बार-बार, जो एम्प्लॉइज़ होते थे, उन्हें अपने कंपनसेशन से रिलेटेड, इंजरी से रिलेटेड जो भी कंपनसेशन होता था, डैमेजेस से रिलेटेड क्लेम होता था, उन्हें सिविल कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता था फॉर द कंपनसेशन। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए धीरे-धीरे करके काफ़ी अमेंडमेंट हुए, काफ़ी जो ये चेंजेज़ आए और सिविल एज़ you can say that during that period of a time, उस वक्त पे बेसिकली क्या हुआ कि अंडर द उस पीरियड पे जब ये सब चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होगी, देन पीरियड ऑफ टाइम द कंपनसेशन एक्ट is a result of the growing dissatisfaction of the common law procedure। जो common law procedure था सिविल कोड का, उसकी वजह से कंपनसेशन एक्ट ग्रो हुआ और नाउ द उसका एक रिफॉर्म हुआ और कंपनसेशन एक्ट बनाया गया फैक्ट्री में कि एम्प्लॉइज को सिविल कोर्ट में अप्लाई ना करना पड़े फॉर द कंपनसेशन। दे गेट द राइट फॉर द इंजरी, उसने इंजरी से रिलेटेड वो अपने कंपनसेशन को, अपने राइट को ले सके। एज वेल एज द एम्प्लॉयर देयर ड्यूटी टू प्रोवाइड द एंड टू प्रोटेक्ट द देयर एम्प्लॉइज व्हेन दे वर्क इन द कंपनी और फैक्ट्री। तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है और लाइबिलिटीज बनती है कि अपनी वर्कर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। तो ये लाइबिलिटीज जो है वी विल स्टडी। तो द एम्प्लॉयर लाइबिलिटी टू द पे कंपनसेशन एक्ट आया और इसमें, इस एक्ट में लाइबिलिटीज क्या होती है एम्प्लॉयर की टू पे द कंपनसेशन, इसके बारे में सेक्शन 3 में एक्सप्लेन किया हुआ है। एज वेल द सेक्शन 3(1) ऑफ द एक्ट एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट, द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी नेसेसरी बी सेटिस्फाई इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द कंपनसेशन। ये कुछ कंडीशन होती है जिन कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है, देन ओनली द कंपनसेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर और द एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉयर की लाइबिलिटीज कंपनसेशन की तभी बनेगी जब ये फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल होंगी। व्हाट आर दिस कंडीशन? द फर्स्ट कंडीशन इन दैट ही मस्ट बी द वर्कमैन। एम्प्लॉयर जो होगा वो अपने एम्प्लॉइज को, अपने वर्कमैन को तभी कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा एज पर द Employees Compensation Act 1923 when the workman is working in the कंपनी और द फैक्ट्री। जब वर्कमैन एम्प्लॉइज होगा फैक्ट्री में, एम्प्लॉइज होगा, वर्कर होगा, तभी उसको वो मिलेगा। पहली कंडीशन ये, वो एम्प्लॉइज होना चाहिए उस फैक्ट्री का, उस इंडस्ट्री का। बाहर की एक्सटर्नल एम्प्लॉइज को कभी भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। उस वही एम्प्लॉयर उसी वर्क एम्प्लॉइज को कंपनसेशन देगा जो उसका वहाँ का एम्प्लॉइज होगा, जो कर्मचारी होगा। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि वहाँ का कर्मचारी होना चाहिए तभी उसको कंपनसेशन मिलेगा। द सेकेंड इज दैट इंजरी मस्ट हैव बीन कॉज बाय द एक्सीडेंट। यहाँ इंजरी होनी बहुत ज़रूरी है। मीन्स कोई भी एक्सीडेंट की वजह से, इंजरी मीन्स नुकसान होना, कोई ना कोई लॉस होना। इंजरी मीन्स बेसिकली मीन्स साइकोलॉजिकल सफरिंग।
होनी बहुत ज़रूरी है, मीन्स कोई ना कोई नुकसान होगा तभी जाके होगा। और इंजरीज मस्ट हैव बीन काउज्ड बाय द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से ही इंजरी होनी चाहिए। एक्सीडेंट क्या होता है? एक्सीडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी इज यूज्ड इन द दिस एक्ट। एन एक्सीडेंट इज लाइक अ अनफॉरसीन मिसहैप। जब अनफॉर्चूनेट मिसहैप हो जाता है और उसकी वजह से इंजरी होगी, तभी जाके कंपनसेशन मिलेगा। मीन्स इंजरी होना ज़रूरी है और एक्सीडेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके कंपनसेशन मिलेगा द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट में। द थर्ड कंडीशन इज दैट एम्प्लॉयर लाइबिलिटीज, एम्प्लॉयर की ड्यूटी कंपनसेशन देने की तभी बनेगी देन ओनली व्हेन द एक्सीडेंट मस्ट हैव बीन अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। And the fourth condition is the injury caused by the accident must have been resulting in the workman death or the permanent total disablement or the temporary disablement for the exceeding 3 years. The accident must have been arising out of and in the course of employment. जो भी accident हुआ है वो हमेशा employment के दौरान या एम्प्लॉयमेंट के बाद, एम्प्लॉयमेंट की ड्यूरेशन में ही होना चाहिए। मीन्स वर्कर शुड हैव बीन वर्किंग दैट इम्प्लाइज इन द एम्प्लॉयमेंट। वो उस वक्त पे वर्क प्लेस में होना चाहिए, तभी एक्सीडेंट होगा। देन ओनली द कंपनसेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर। मीन्स एम्प्लॉयमेंट के कारण, वर्किंग शेड्यूल और वर्किंग प्रोसीजर के कारण ही एक्सीडेंट होना चाहिए। अगर कोई और अदर रीजन की वजह से, एम्प्लॉयमेंट का रीजन ही होना चाहिए, मीन्स वर्किंग शेड्यूल और वर्किंग के कारण ही एक्सीडेंट होना चाहिए, कोई और रीजन नहीं होना चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट के कारण ही या कोर्स के कारण ही, वर्ड के एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन या कोर्स के कारण ही एक्सीडेंट होना चाहिए। देन ओनली द कंपनसेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉइज। The fourth condition is that the injury must caused by the accident must have been resulted in the workman death. जो भी इंजरीज होगी एक्सीडेंट में, वर्कमैन की उस इंजरीज की वजह से जो रिजल्टेंट होगा, तो वर्कमैन को उसकी डेथ हो जानी चाहिए। इंजरीज जो भी होगी, इंजरी मीन जो भी नुकसान, जो भी लॉस हुआ है एक्सीडेंट की वजह से, उसकी वजह से वर्कमैन की 3 कंडीशन हो सकती है। वर्कमैन की डेथ हो गई, अगर उस इंजरी की वजह से अगर वर्कमैन की डेथ होती है, वर्कमैन वर्कमैन को परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट होता है, ये टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो जाता है, डिसेबल हो जाता है फॉर द एक्सीडिंग 3 पीरियड। 3 दिन से ज्यादा टाइम पीरियड होना चाहिए, देन ओनली द कंपनसेशन विल बी प्रोवाइडेड। 3 दिन से अगर कम टाइम पीरियड है, मीन्स अगर कोई भी एम्प्लॉइज है, वो उसको इंजरी हुई है और 3 दिन में रिकवरी हो गई है, तो कंपनसेशन विल नॉट बी प्रोवाइडेड। मगर 3 दिन से ज़्यादा टाइम ले रहा है और परमानेंट या टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो गया है, मीन्स द एम्प्लॉइज कैन नॉट बी एबल टू परफॉर्म देयर टास्क और द ड्यूटी, और उसकी रिड्यूस की कैपेसिटी जो है, अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है और 3 दिन से ज़्यादा टाइम हो जाता है, देन ओनली द कंपनसेशन विल बी प्रोवाइडेड। मीन्स 3 दिन से ज़्यादा डिसेबलमेंट होना चाहिए, तभी जाके कंपनसेशन मिलेगा, अदरवाइज कंपनसेशन नहीं मिलेगा। The accident arising out of in the course of the employment, this is very important topic। एक्सीडेंट जो भी होगा वो अराइज होना चाहिए, मीन्स होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट की आउट ऑफ इन द कोर्स ऑफ, एम्प्लॉयमेंट के दौरान या एम्प्लॉयमेंट के बाद होना चाहिए। मीन्स द एम्प्लॉयर जो होगा इज लायबल टू पे कंपनसेशन इन द केस ऑफ द पर्सनल इंजरीज एंड द ऑक्यूपेशनल डिजीज। तो यहाँ कंपनसेशन तभी प्रोवाइड होगा जब पर्सनल इंजरीज होगी और ऑक्यूपेशनल डिजीज होगी। ऑक्यूपेशनल डिजीज में वो सब उस ऑक्यूपेशन में, उस एम्प्लॉयमेंट के दौरान जो भी कंडीशन ऐसी क्रिएट होती है जिस वजह से एम्प्लॉयज को कुछ बीमारियां हो जाती है या कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाती है उस इन्वायरमेंट के कारण, उसको भी कंपनसेशन मिलेगा। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर वही कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा जो पर्सनल इंजरीज की होंगी या ऑक्यूपेशन डिजीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी या इंजरीज होंगी, जो नुकसान होंगे जो होगा, उसी को एम्प्लॉयर पे करेगा कंपनसेशन में। द पर्सनल इंजरीज इंक्लूड, पर्सनल इंजरीज मीन्स फिजिकल एंड मेंटल इंजरीज। अगर कोई भी फिजिकल इंजरी या मेंटल इंजरीज होती है, स्ट्रेन होता है, शॉक्ड होता है कॉज बाय द एक्साइटमेंट, इसके कारण जो भी एक्साइटमेंट के कारण शॉक, स्ट्रेन और इंजरीज होती है मेंटल और फिजिकली, ये पर्सनल इंजरीज की कैटेगरी में आती है। एंड दिस इंजरीज इज बेसिकली इज कम्स अंडर द कंपनसेशन। और यहाँ तक एम्प्लॉयर जो होता है वो लायबल हो जाता है कि उसे पर्सनल इंजरीज से रिलेटेड और ऑक्यूपेशनल डिजीज से रिलेटेड कंपनसेशन प्रोवाइड करना है अपने वर्कर को। जो भी एम्प्लॉयमेंट के दौरान अपने वर्कर को, उसके वर्कर को ऑक्यूपेशनल डिजीज या पर्सनल इंजरीज हुई है, उसको उस तरह का पेमेंट, उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। इंसिडेंट टू हिज एम्प्लॉयमेंट एंड द इंजरीज देन अराइजिंग आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट के दौरान और इंजरीज के बाद भी हो सकते हैं। द एनी इंजरीज कुड बी
हैव टू अराइजिंग आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट एम्प्लॉयमेंट के बाद भी कई बार कुछ इंजरीज हो जाती है। मीन्स जब वर्कर काम कर रहा है फैक्ट्री में तब वो इंजरीज होगी, देन डेफिनेटली द वर्कर विल गेट कंपनसेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड। बट व्हेन कुछ जॉब ऐसी होती हैं जो जिस जॉब में एम्प्लॉयमेंट के बाद भी कुछ इंसिडेंट ये हो जाते हैं जिस वजह से कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। व्हाट आर दिस कंडीशन? It must have resulted from the some risks incidental to the duties of the service and inherent to the nature of the employment। कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट के बाद भी इंसिडेंटल ड्यूटीज और सर्विस के कारण एम्प्लॉयज़ को हो सकते हैं। मीन्स वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि सपोज किसी फैक्ट्री में कुछ गैस की वजह से इनहेल करता है एम्प्लॉयज़, एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ अ टाइम व्हेन ही गोज टू देयर होम एंड आफ्टर 1 मंथ दे गेट टू नो दैट दे हैव अ कैंसर। तो उन किसी एम्प्लॉयज़ को जब पता चलता है कि ही गेट कैंसर, तो यहाँ पर कैंसर या कोई अस्थमा या कोई बीमारी हो गई है, तो ये एम्प्लॉयमेंट के बाद हुई। मीन्स वो इन्वायरमेंट के कारण उसे जो बीमारी हुई है उसकी वजह से वो जो बीमारी हुई है। तो दिस इज बेसिकली जो डिजीज हुई है, जो इंसिडेंट हुआ है, जो कुछ भी एक्सीडेंट हुआ है, दिस इज हैपन ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के कारण हुआ है। एंड दिस इज द अराइजिंग आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट के बाद हुआ है, बट दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंपनसेशन। तो कोई भी ऐसी डिजीज है या कोई भी ऐसी ड्यूटीज है सर्विस की या एम्प्लॉयमेंट की जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट इंजरीज हो जाती है या कोई भी अराइजिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है, इंजर्ड हो जाता है एम्प्लॉयज, एंड दिस इज अराइजिंग आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट के बाद भी अगर कोई बीमारी होती है तो उसमें भी कंपनसेशन एम्प्लॉयर जो होगा वो लायबल हो जाएगा कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए। Now, the second condition is that at the time of the injury, the worker must have been engaged in the business of the employer। तो जब भी इंजरी होगी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट कि whenever the injury happened to the worker, they have been engaged in the business of the employer। They must be in the engaged in the business of the employer। वो अपने एम्प्लॉयर की बिजनेस में इन्वॉल्व होने चाहिए दैट पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द इंजरी हैपन टू देम, एंड मस्ट नॉट बी डूइंग समथिंग फॉर हिज पर्सनल एडवांटेजेस। वो अपने कुछ पर्सनल काम को नहीं करने चाहिए। अगर अपने पर्सनल काम को कर रहे हैं देन द इंजरी विल हैपन, देन ही द एम्प्लॉयर विल नॉट बी liable for the compensation। The employer will only be liable for the compensation when the employees get the injury during the uh, during the period of the during the work of um, during the work during the employment period of time। जब भी वो एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, वो जब जॉब कर रहा है, कंपनी में काम कर रहा है, एम्प्लॉयर की बिहाफ में काम कर रहा है, तभी जाके कोई इंजरी होती है। अपना पर्सनल काम नहीं कर रहा है, देन ओनली द एम्प्लॉयर विल गिव द कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज। अदरवाइज अगर एम्प्लॉयज अपने काम को कर रहा है, अपने पर्सनल काम को करते हुए इंजरी हो जाती है, तो एम्प्लॉयज खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, एम्प्लॉयर नहीं प्रोवाइड करेगा कंपनसेशन। तो एम्प्लॉयर कंपनसेशन तभी प्रोवाइड करेगा जो एम्प्लॉयज है वो बिजनेस में एम्प्लॉयर का काम कर रहा होगा, तभी वो कंपनसेशन पाएगा। अदरवाइज वो अपने पर्सनल काम से रिलेटेड कंपनसेशन नहीं पा सकता। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द एम्प्लॉयर लायबिलिटी फॉर द कंपनसेशन। अब देयर आर पुट देयर एम्प्लॉयर नॉट लायबल टू पे द कंपनसेशन। कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां एम्प्लॉयर लायबल नहीं होता, उसकी ड्यूटी नहीं बनती कंपनसेशन देने की? This is the two condition I have put it here. Employer shall not be liable to pay the compensation in the following condition. The first is that the injury, whenever the injury happen to the worker, he does not result in the disablement for the period of the three exceeding 3 days। अगर कोई भी डिसेबलमेंट किसी भी एम्प्लॉयज को 3 दिन से ज्यादा का नहीं होता है, तब एम्प्लॉयर जो होगा वो कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड करेगा। मीन्स कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉयर तभी कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा जब इंजरी जो होगी 3 दिन से ज़्यादा की होगी। अगर 3 दिन से कम की इंजरी होती है तो कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं करेगा फॉर द एनी काइंड ऑफ डिसेबलमेंट टू द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय को डिसेबलमेंट के लिए 3 दिन से कम अगर होता है तो एम्प्लॉयर लायबल नहीं है। द इंजरी इन रिजल्ट इन द डेथ एंड द परमानेंट टोटल डिसेबल्ड ड्यू टू द इंजरी। जो whenever that injury or the accident happen to the employees, जो employees वर्कर है उन्हें इंजरी जो भी होती है उसकी वजह से डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। और परमानेंट या टेम्पररी और डेथ अगर होती है उसके लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए। दैट फर्स्ट कंडीशन इज दैट इंजरी whenever the injury happen to the worker at the time of accident, जब भी उसको इंजरी होती है किसी वर्कर को, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रिंक और द ड्रग्स, अगर यहाँ पर वर्कर
किसी भी ड्रिंक या कोई ड्रग्स या किसी भी तरह की एडिक्शन में इन्वॉल्व है, देन द एक्सीडेंट और द इंजरी हैपन टू देम। वर्कर को कोई भी इंजरी अगर होती है एम्प्लॉयमेंट में, उसके जॉब के दौरान, और वो अगर ड्रिंकिंग या ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में है और इस वजह से उसको एक्सीडेंट हुआ है, देन द एम्प्लॉयर विल नॉट बी लायबल फॉर एनी काइंड ऑफ कंपनसेशन, बिकॉज दिस इज अ मिस्टेक ऑफ द वर्कर। और मिस्टेक की वजह से, वर्कर की मिस्टेक की वजह से एक्सीडेंट और इंजरी हुई है, इस वजह से एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। द सेकंड कंडीशन इज दैट द वर्कर विलफुली डिसोबे एनी ऑर्डर। अगर जानबूझ के वर्कर जानबूझ की कोई भी ऑर्डर्स हैं जो कि सेफ्टी मेजर्स बताए हुए हैं, एज यू नो दैट एवरी कंपनी विल प्रोवाइड is giving you a safety measure whenever the worker is work in the company is previously वो एक एक्सप्लेन कर देती है, एक ऑर्डर बता देती है कि these are the safety measure you have to be follow whenever you do the any kind of a task in the company। अगर वर्कर विलफुली जानबूझ की डिसोबे करता है किसी भी ऑर्डर को और वो इस सेफ्टी मेजर को यूज किए बिना वर्क को करता है और उसको कोई इंजरी हो जाती है, तो यहाँ पर वर्कर की मिस्टेक की वजह से, उसकी विल जानबूझ के डिसेबल करने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, देन इट मीन्स दैट ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ द एम्प्लॉइज, जो वर्कर है उसकी वजह से मिस्टेक हुई, यहाँ पर एम्प्लॉयर की कोई गलती नहीं है, तो एम्प्लॉयर विल नॉट बी लायबल फॉर any kind of compensation। The third condition is that the worker willfully remove any safety device। अगर उसे पता है वर्कर को कि कोई भी डिवाइस ऐसा है जिसको यूज करने से वो उसको कोई हार्म नहीं होगा, मगर वो जानबूझ की किसी willfully they removed any kind of safety device and he knew that this would harm them, एंड और वो जानता है कि सेफ्टी डिवाइस को हटाने के बाद उसे हार्म हो जाएगा, और इंस्टेड ऑफ नोइंग दैट ऑल थिंग्स he remove any safety device, in that condition employer will not be liable for any compensation, because this is the mistake of the worker। मिस्टेक की वजह से, यहाँ वर्कर की मिस्टेक की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, इस वजह से कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं दिया जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी वर्क, जब भी हम वेन एवर वी यूज द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एंड दिस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन अ शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्मेट, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन क्या है। नोशनल एक्सटेंशन इज बेसिकली थ्योरी, दैट थ्योरी इज यूज्ड इन द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 में, ये थ्योरी यूज होती है। दिस थ्योरी ये बताती है कि जब भी कोई भी वर्कर किसी भी कंपनी में काम करता है तो उसका एम्प्लॉयमेंट टाइम कब माना जाएगा। द जनरल रूल्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज दैट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज कमेंस फ्रॉम, कभी भी कोई भी एम्प्लॉइज उसका एम्प्लॉयमेंट टाइम पीरियड कब माना जाएगा। द एम्प्लॉयमेंट का जो भी टाइम पीरियड होगा एम्प्लॉइज का, वर्कर का, कमेंस स्टार्ट फ्रॉम द टाइम व्हेन ही रीच द प्लेस ऑफ द वर्कर ही हैज टू डू हिज परफॉर्म, व्हेन द एम्प्लॉइज लीव देयर होम प्लेस एंड वेन एवर ही एंटर और रीच द वर्क प्लेस, जब वो एंटर करेगा अपने वर्क प्लेस में, फैक्ट्री में, दैट पीरियड ऑफ टाइम एम्प्लॉयमेंट टाइम शुरू हो जाएगा। मीन्स एम्प्लॉइज जब अपने घर से लेकर फैक्ट्री तक जाता है, इस पीरियड में जब वो घर बीच में है, वो सेंटर में है, एम्प्लॉइज अपने वर्कर प्लेस से रिलेटेड बीच डिस्टेंस में है, या अपने वर्क प्लेस को छोड़ के अपने होम प्लेस में जाता है, इस पीरियड का जो ड्यूरेशन होगा उसको हम एम्प्लॉयमेंट में नहीं जोड़ेंगे। मीन्स दिस पीरियड विल नॉट बी कंसिडर अंडर द, will not be considered or they will not be said to be employment time period। तो एम्प्लॉयज को जब भी इस ड्यूरेशन में वो अपने वर्क प्लेस में जाता है, इस पीरियड को कभी भी वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं जुड़ेगा। मीन्स एनी थिंग और एनी थिंग विल हैपन और इंजरी और एक्सीडेंट हैपन बिटवीन दैट पीरियड ऑफ टाइम, जो एम्प्लॉयज अपने वर्क प्लेस में जा रहा है या वर्क प्लेस से अपने होम प्लेस में जा रहा है, इस पीरियड में अगर कोई भी एक्सीडेंट या इंजरी होता है, इसको एम्प्लॉयमेंट में नहीं जोड़ेंगे। मीन्स यहाँ पर कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं होगा। तो वर्कर जैसे ही वर्क प्लेस में एंटर करेगा और अपने काम को शुरू करेगा, तभी से एम्प्लॉयमेंट उसका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। मीन्स कंपनसेशन के लिए कंडीशन यही है कि एम्प्लॉयज़ को इस वर्क प्लेस में रहना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके उसको कंपनसेशन प्रोवाइड होगा, या वो इससे रिलेटेड कुछ काम कर रहा हो अपने वर्क प्लेस को। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज दैट द टाइम टेकन इन रीचिंग द प्लेस ऑफ द वर्क फ्रॉम होम एंड रिटर्निंग टू होम फ्रॉम द वर्क प्लेस ऑफ
फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क इज नॉट इंक्लूड इन द टाइम ऑफ पीरियड एम्प्लॉयमेंट। तो जो भी टाइम एम्प्लॉइज अपने वर्क प्लेस और वर्क प्लेस से लेकर होम प्लेस के बीच में निकालता है, दैट टाइम ही हैज टेकन, दैट टाइम इज नॉट कंसिडर अंडर द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसको टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कि इस टाइम पीरियड को हम कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे, the principle of notional extension has been propounded and extended to applied। इस इस notional extension को explain किया गया कि जो notional extension ये क्या बोलता है कि whenever the worker enter into the workplace, that period of time is a employment time। तो एम्प्लॉयमेंट टाइम तभी माना जाएगा जो वर्क प्लेस में एंटर करेगा। मगर जो उसका पीरियड, ये पीरियड है जिस पीरियड में वो अपना टाइम घर से लेकर अपने वर्क प्लेस और वर्क प्लेस से घर में जाएगा, इस पीरियड को कभी भी एम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाएगा। तो ये तो नोशनल हमारा एक्सटेंशन बोलता है। तो मगर इसके लिए कुछ प्रोपोंडेड एक्सटेंडेड कुछ रूल्स रेगुलेशन कुछ चेंज हुए। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एक्सटेंशन थ्योरी, द नेचर एंड रिजल्ट ऑफ द एक्सीडेंट विल बी टेकन ऑन कंसिडरेशन। जो पीरियड होगा, इस पीरियड में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है वर्कर को, ये पीरियड जो बेसिकली होगा, इस पीरियड में देखा जाएगा अगर कोई एक्सीडेंट हैपन हो जाता है एम्प्लॉइज को, और वो कंपनसेशन मिलेगा नहीं मिलेगा। और ये नोशनल एक्सटेंशन ये कहता है कि द थ्योरी ऑफ नेचर एंड रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट विल बी कंसिडर। किस तरह का एक्सीडेंट हुआ है, रिजल्ट क्या है, उसका नेचर क्या एक्सीडेंट का, विल बी कंसिडर व्हेन द कंपनसेशन इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज जब भी एम्प्लॉयर जब भी अपने एम्प्लॉइज को कंपनसेशन देगा, तो वहाँ पर नेचर एंड रिजल्ट ऑफ द एक्सीडेंट कंसिडर किया जाएगा इंस्टेड ऑफ टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं देखा जाएगा, उस समय देखा जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली द रिजल्ट ऑफ द एक्सीडेंट एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द एक्सीडेंट विल बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन। This is all about the today topic, and we have studied what exactly the liability of the compensation, um, what is the liability of the employer for the compensation, and this is all about the today topic. Thank you, my dear student.